students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is editing and formatting in Excel. Objectives of learning: selecting cells, insertion or deletion in a worksheet, modifying data in cells, autofill feature, copying or moving data, formatting spreadsheet. Now that you have learned the elementary concepts of MS Excel 2016, let us learn how to make an Excel sheet look more presentable and attractive. To perform such operations, formatting is applied in Excel in the same way you had formatted using Microsoft Word 2016. Before learning the basics of formatting or editing, let us learn how to select a cell or a group of cells upon which formatting is to be performed. तो आपकी एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग यानी कि आपकी पहले की क्लासेस में आपने देखा है कि MS Excel 2016 पे किस तरीके से फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करी जाती है. इस चैप्टर में आप देखेंगे और भी ज़्यादा एडवांस्ड फीचर जिससे आपका एक्सेल बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव लगे. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का आपको पता है. अब आप कुछ बेसिक्स के बारे में और कुछ थोड़े बहुत एडवांस्ड फीचर्स जानेंगे एडिटिंग के बारे में. Selecting multiple cells. The currently selected cell is called the active cell, shown by a thick border. It is the place where editing can be performed. To make a cell active, use the mouse pointer to click on it. It is also possible to select a group of adjacent cells. A group of adjacent cells is called a cell range. Many operations can be done against a cell range: cut, copy, delete, etc. A cell range can be defined in different ways. Select a specific range of cells, select multiple columns or rows, or select the entire worksheet. तो आप सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. एक्टिव सेल आपका वो सेल होता है जिस पे आपके थिक बॉर्डर्स होते हैं और उस पे आप एडिटिंग या फॉर्मेटिंग किसी भी तरीके की कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको किसी और सेल को एक्टिव सेल बनाना है तो सिंपली आपको माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाना है और क्लिक कर देना है तो वो सेल एक्टिव सेल बन जाता है. इसके अलावा सिंगल एक्टिव सेल के साथ साथ आप रेंज ऑफ सेल्स को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स, स्टेप 1, सिलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज विच यू वांट टू सिलेक्ट. स्टेप 2, click and hold the left mouse button and drag left or right, up or down to the last cell you want to select. Step 3, release the mouse button. The cells get selected and are shown as shaded. Alternately, for selecting a cell range, you may click on the first cell in the range and hold down the shift key on the keyboard and select the last cell of the range to select the entire range. अब आपको range of cells यानी कि adjacent cells को अगर आपको select करना है तो सबसे पहले तो आप जो आपकी रेंज है जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले आप उसकी फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे. ये करने के बाद आपको क्लिक करना है और होल्ड करना है आपके लेफ्ट माउस बटन को और ड्रैग करना है लेफ्ट में, राइट में, अप या डाउन, जिस चीज़ को भी आपको सिलेक्ट करना है जिस भी डायरेक्शन में. इसके बाद आपको रिलीज कर देना है आपका माउस बटन. जो आपके सेल्स सिलेक्ट हो रखे होंगे या होंगे वो आपके शेडेड आपको दिखाई देंगे. ऑल्टरनेटिवली आपके जो सिलेक्ट करे हुए सेल हैं आप क्लिक कर सकते हैं आपके फर्स्ट सेल पे और रेंज आपकी पूरी की पूरी आपको होल्ड करनी है. आपको होल्ड डाउन करते हुए शिफ्ट की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे और लास्ट सेल तक आपको सिलेक्ट करते हुए लेकर जाना है. वो पूरी की पूरी रेंज ऑफ सेल जो एंटायर रो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी. To select all cells in a column or row. Step 1, click the gray column heading to select the entire column. Click and drag the cursor across other column headings to select those columns. Step 2, click the gray row heading to select the entire row. Click and drag the cursor down through the row headings. Select these rows. तो अगर आपको सिलेक्ट करना है सेल्स आपके जो कॉलम है या फिर रो में या कॉलम में अगर आपको सारे के सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको जो आपका ग्रे कॉलम का हेडिंग है आपको वो सिलेक्ट करना है आपके एंटायर कॉलम से. क्लिक करना है, ड्रैग करना है कर्सर को अक्रॉस द कॉलम हेडिंग्स और उस कॉलम तक लेकर जाना है जहां तक आपको सिलेक्शन चाहिए. इसके बाद आपको
क्लिक करना है द ग्रे रो हेडिंग पे ताकि आप पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर पाए। वापस से आपको ड्रैग करना है, क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग करना है कर्सर को उस रो की हेडिंग तक जहां तक आपको रो को सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, क्लिक द ग्रे रेक्टेंगल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर टू सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट। अब अगर आपको पूरी की पूरी वर्कशीट को ही सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको जो ग्रे रेक्टेंगल है अपर लेफ्ट कॉर्नर पे उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। टेक टिप, Alternately, you may use the keyboard combinations Ctrl+A या फिर पूरी की पूरी वर्कशीट को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड पे आप Ctrl+A को करेंगे प्रेस, तभी भी आपकी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। Modifying data in cells. If you have typed something wrong and want to correct it, then use any one of the following methods. तो कभी कभी ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, यानी कि आप गलतियां कर सकते हैं, यू आर प्रोन टू डू मिस्टेक्स। तो आपको कोई भी चेंजेस लेकर आने हैं तो आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं। तो पहला है मेथड 1 टू एडिट द डेटा ऑफ सेल्स। Step 1, bring cursor on the cell which is to be edited and double click on it. Step 2, the cell will open in edit mode. Now edit data as per your requirement. Step 3, press enter key to complete the data entry. तो पहला मेथड है कि आपको सेल के डेटा को मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना कर्सर उस सेल पे लेकर आएंगे जिसके डेटा को आपको एडिट करना है और उस पर आप डबल क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपका जो सेल है वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशंस करिए, जो भी आपको फिल इन करना है करिए। आफ्टर यू आर डन विद द मॉडिफिकेशंस आपको एंटर की पे प्रेस करना है, आपकी डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यूज एरो कीज टू मूव अराउंड द वर्कशीट। प्रेस Ctrl+A टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। प्रेस F2 की टू ओपन द सेल्स इन द एडिट मोड। तो अगर आपको आपकी वर्कशीट पे इधर उधर घूमना है और आपके सेल्स को शिफ्ट करना है तो आप कीबोर्ड कीज़ की मदद से भी वो कर सकते हैं। Ctrl+A दबाइए, आप पूरी वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट कर पाएंगे। F2 की को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी करंट सेल है वो एक्टिव सेल है वो आपका एडिट मोड पे चला जाएगा। अब दूसरा मेथड है मेथड 2 टू ओवरराइड द डेटा ऑफ सेल्स। स्टेप 1, सिलेक्ट अ सेल एंड टाइप द न्यू डेटा इन द सेल। स्टेप 2, प्रेस एंटर की टू कंप्लीट योर एंट्री। अब अगर आपको किसी सेल में किसी भी डेटा को दोबारा से लिखना है तो सबसे पहले आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जिस पे आपको रीराइट करना है। आफ्टर यू आर डन विद रीराइटिंग आपको एंटर की पे प्रेस कर देना है, आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। कॉपिंग और मूविंग डेटा, just similar to Word, data can be copied or moved from one cell to another in Excel. तो आपका जो Word प्रोग्राम था बिल्कुल उसी की तरह ही आप एक Excel शीट पे भी अपने डेटा को कॉपी या फिर मूव कर सकते हैं। Copying data of cells. In Excel, you can copy the data of cells to another by using copy and paste options. To copy the data, follow the steps given below. Step 1, select the cells which is to be copied. Step 2, click on the Home tab. Step 3, click on the copy option in the clipboard group. A dashed border appears around the cells. Step 4, select the cells where you want to paste the copy of the data. Step 5, click on the paste option in the clipboard group of Home tab. A duplicate copy of the data appears at a new position. अब अगर आपको आपके जो सेल्स का डेटा है उसको कॉपी करना है तो आप सिंपली कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन से भी वो कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी करना है तो कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उन सेल या फिर एक सेल या फिर मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करिए जिसको आपको कॉपी करना है। होम टैब पे जाइए, कॉपी ऑप्शन पे जाइए जो कि आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप पे होगा। एक डैश्ड बॉर्डर अपीयर हो जाएगा आपके सेल्स के आसपास जिसको आपने सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप सेल या फिर सेल्स को सिलेक्ट करिए जिसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, जिसके डाटा को आपको कॉपी पेस्ट करना है। आफ्टर दैट क्लिक द पेस्ट ऑप्शन आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जो कि आपके होम टैब पे होगा। आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी उसी डेटा की नई जगह पे कॉपी हो जाएगी। मूविंग डेटा ऑफ सेल्स, you can move the data in the cell at the new position in the worksheet if required by using cut and paste options.
To move the data, follow the steps given below. Step 1, select the cells which is to be moved. Step 2, click on the Home tab. Step 3, click on the Cut option in the clipboard group. A dashed border appears around the cells. Step 4, select the cells where you want to move the data. Step 5, click on the Paste option in the clipboard group of Home tab. The data of cells will appear at the new position. अब अगर आपको सेल के डेटा को मूव करना है तो उसके लिए सिंपली आप कट पेस्ट ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करिए. सबसे पहले सेल या फिर सेल्स को सिलेक्ट करिए जिसको आपको मूव करना है. उसके बाद होम टैब पे जाइए. उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट ऑप्शन पे क्लिक करिए. आपके सामने एक डैश्ड बॉर्डर अपीयर हो जाएगा आपके सेल्स के आसपास जो आपने सिलेक्ट कर रखा है. इसके बाद आप उन सेल्स को सिलेक्ट करिए जहां पर आपको डेटा को मूव करना है. इसके बाद आपके होम टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन में पेस्ट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करिए. जो भी आपका डेटा है सेल्स का वो मूव हो जाएगा. कीबोर्ड शॉर्टकट्स. प्रेस Ctrl+X टू कट द सिलेक्टेड डेटा. प्रेस Ctrl+C to copy the selected data. Press Ctrl+V to paste the cut or copied data. तो किसी डेटा को अगर आपको कट करना है तो Ctrl+X दबाइए, कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाइए और कट और कॉपी किए हुए डेटा को पेस्ट अगर आपको करना है तो Ctrl+V प्रेस करिए. Critical thinking. Rinki wants to delete a cell, but she has forgotten the steps to do so. Tell her the steps to do so. तो रिंकी जो है उसको अपने कुछ सेल्स को डिलीट करना है लेकिन वो स्टेप्स भूल चुकी है तो आपको उसकी हेल्प करनी है. Activity. Open the Excel 2016 and do the following tasks in it. Number 1, enter the following information in the worksheet. Second, change the department available in the cell E4 to security. Third, delete the data of the last row in the worksheet. तो आपको एक वर्कशीट को ओपन अप करना है. जैसा आपको अवेलेबल है एक्टिविटी में वैसी डेटा आपको फिल इन करनी है. उसके बाद जो आपका E4 वाला सेल है उसमें आपको डेटा को चेंज करके सिक्योरिटी डालना है और आपका जो लास्ट रो का डेटा है उसको आपको डिलीट करना है. Inserting columns, rows in a worksheet. In Excel, columns and rows can easily be inserted in the worksheet if required. To insert a column row, follow the steps given below. Step 1, click on the column header or row header before which you want to insert a new column. Step 2, click on the Home tab. Step 3, click on the Insert option in the Cells group. Step 4, click on the Insert Sheet Columns or Insert Sheet Rows option. A new blank column row will be inserted in worksheet before the selected column or row. अब अगर आपको कॉलम या कॉलम्स, रो या फिर रोज को वर्कशीट में एंटर करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप कॉलम हेडर या फिर रो हेडर पे क्लिक करेंगे जिसके भी पहले आपको कॉलम या रो को सिलेक्ट करना है, ऐड करना है. इसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे. होम टैब पे जाने के बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको सेल्स ग्रुप में जाना है. आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है शीट कॉलम्स या फिर इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन पे. कॉलम अगर ऐड करना है तो कॉलम पे जाएंगे, अगर शीट ऐड करनी है तो शीट रोज पे जाएंगे. अ न्यू ब्लैंक कॉलम या फिर रो जो भी आपने ऐड करा है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा आपके सिलेक्टेड रो या कॉलम के पहले. Do you know you can also insert a column or row by following the given steps below? Number 1, right click on the column header or row header before which you want a new column or row. A context menu appears. Second, click on the insert option. A new column or row gets inserted. इतने बड़े सारे स्टेप्स को अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो सिंपली जिस भी रो या कॉलम के पहले आपको ऐड करना है रो या कॉलम वहां पर आप राइट क्लिक करिए कॉलम हेडर और रो हेडर पे. उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा. उस मेन्यू में आपको इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका कॉलम या रो इंसर्ट हो जाएगा. एक्टिविटी. Open Excel 2016 on your computer and create the following worksheet. Number 1, enter the following information in the worksheet. Do the following tasks. Number 1, rename the worksheet as Students Record. Second, add a column named Class before the column Test Paper 1 in the worksheet. Enter information in it. Number 3, add a row before the row 5. Enter record in it. Number 4, save the workbook as records. Number 5, exit Excel 2016. Number 6, open the saved workbook. Number 7, again save the workbook as Students Records. तो
इस एक्टिविटी में आपको एक्सेल शीट को ओपन करना है, जो एक्टिविटी में डेटा दे रखा है वो आपको फिल इन करना है। ये फिल इन करने के बाद आपको अपनी वर्कशीट को स्टूडेंट्स रिकॉर्ड से रीनेम करना है। टेस्ट पेपर 1 के कॉलम से पहले आपको क्लास का एक कॉलम क्रिएट करना है, नया कॉलम क्रिएट करना है, इन्फॉर्मेशन डालनी है। रो 5 से पहले आपको एक और रो डालनी है, उसमें रिकॉर्ड एंटर करना है। वर्कबुक को सेव करना है रिकॉर्ड्स के नाम से, एग्जिट करना है एक्सेल 2016। फिर आपको जो सेव्ड वर्कबुक है उसे ओपन करना है और दोबारा से आपको वर्कबुक को सेव करना है एज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। Deleting columns or rows in a worksheet. The columns or rows can be deleted if it is not required in the worksheet. तो एक वर्कशीट में आप काम करते हैं, कभी कभी कुछ कॉलम्स या रो जो आपने क्रिएट करे हैं वो आपको नहीं चाहिए होते हैं, तो उन केसेस में आप उनको डिलीट करते हैं। उसके कुछ आपके स्टेप्स हैं। Deleting a column or row. To delete a column or row, follow the steps given below. Step 1. Open the worksheet in which you want to delete a column or create a new one. Step 2. Select the column or row which is to be deleted. Step 3. Click on the Home tab. Step 4. Click on the Delete option in the cells. Step 5. Click on the Delete Sheet Columns or Delete Sheet Rows option. The selected column or row will be deleted from the worksheet. तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट को ओपन करेंगे, जिसमें से आपको या तो डिलीट करना है कॉलम को या फिर ऐड ऑन करना है। इसके बाद आप कॉलम और रो पे सिलेक्ट करेंगे जो आपको डिलीट करना चाहते हैं। होम टैब पे जाएंगे, डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे जो कि आपके सेल्स मेन्यू में होगा। उसके बाद आपको डिलीट शीट कॉलम्स या फिर डिलीट शीट रोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जो भी सिलेक्ट करा हुआ है कॉलम या रो वो आपकी डिलीट हो जाएगी। Do you know you can also delete a row or column by following the steps given below? Number 1, right click on that particular row header, column header which is to be deleted. A context menu appears. Number 2, click on the delete option. The particular row or column will get deleted. तो इतने सारे स्टेप्स को अगर आपको फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली भी आप डिलीट कर सकते हैं। जो आपका रो हेडर या फिर रो कॉलम वाला हेडर आता है, उससे पहले आपको राइट क्लिक कर देना है जो आप डिलीट करना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा, उसमें आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपका सिलेक्टेड कॉलम या रो डिलीट हो जाएगा। Filling cells by using autofill feature. The autofill feature of Excel allows you to quickly fill a range of cells with the same type of data with the data that follows a pattern, series, without typing it. तो autofill feature से ये होता है कि आपको अगर एक series of information को fill in करना है जो सीरीज में चल रही है, सीक्वेंशियल मैनर में चल रही है, तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोफिल यानी कि अपने आप फिल होता रहेगा। To fill cells with a pattern, follow the steps given below. Step 1, type first two values in two adjacent cells to form a series. Step 2, select both the cells and take the mouse pointer on the lower right position. Cursor will be changed in fill handle shape. Step 3, drag the fill handle to enclose the area you want to fill. The series will appear in cells automatically according to first two numbers. तो इसके लिए भी आपके कुछ steps हैं। सबसे पहले तो आपको पहली दो वैल्यूज को टाइप कर देना है दो एडजेसेंट सेल्स में, ताकि एक सीरीज फॉर्म हो जाए। इसके बाद आपको सिलेक्ट करने हैं दोनों सेल्स को और आपके माउस पॉइंटर को लेकर जाना है लोअर राइट पोजीशन में। जो आपका कर्सर है वो फिल हैंडल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ड्रैग करना है आपके फिल हैंडल को टू एनक्लोज दैट एरिया, उस एरिया को बंद करने के लिए जिसको आप फिल करना चाहते हैं। जो भी आपकी सीरीज है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में फिल होने लग जाएगी। जैसे आपका 1 2 3 का पैटर्न होता है वो नंबर वाइज में आ जाएगा। मंथ्स अगर जनवरी फरवरी है तो वो ऑटोमेटिकली फिल होते रहेंगे। वीकडेज है तो संडे मंडे ट्यूसडे आप 2 फिल करिए, बाकी सारे ऑटोमेटिकली फिल होते रहेंगे। Formatting spreadsheet. To further enhance your spreadsheet, you can format a number of elements such as text, numbers, coloring and table styles. तो आपको अगर स्प्रेडशीट को और भी ज़्यादा एनहांस बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, अपीलिंग बनाना है कि कोई भी आपकी स्प्रेडशीट को देख ले तो बोल दे वाह क्या बनाई है, तो उसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपके टेक्स्ट हो गए, नंबर्स हो गए, उनको उनके फॉन्ट स्टाइल्स को आपको चेंज करना होता है। Text formatting. The text formatting is applied onto the entered text. Excel provides a variety of font types, sizes, colors, alignments, etc. for text by using which you can adjust your text. फिर आपका text formatting आता है। Excel में आपके variety of font types होते हैं, sizes होते हैं, colors होते हैं। किसी भी size का आपको font चाहिए, किसी भी color का चाहिए, किसी भी style का चाहिए, तो वो Excel में present होता है, available होता है। Making text bold, italic and underline.
You can also format the text as bold, italic and underline in Excel 2016. The options are bold, B, this button increases the thickness of the text to make it darker. Italic, I, this button tilts the text. Underline, U, this button provides a line below the text. तो आपका फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट के, जिसमें आपका बोल्ड आता है, बी अल्फाबेट से होता है, या आपके अल्फाबेट को डार्क बना देता है, थिक बना देता है. फिर आपका इटैलिक होता है, आई से डिनोट होता है, आपके लेटर्स को या टेक्स्ट को ये टिल्ट कर देता है. फिर तीसरा होता है अंडरलाइन, या आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ले आता है. To apply these effects, follow the steps given below. Step 1. Select a cell or a range of cells of which text font is to be changed. Step 2. Click on the Home tab. Step 3. Click on any one of the effects. The text will be changed accordingly. तो अब ये कैसे आप अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो आपको उस सेल या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसके टेक्स्ट को आपको फॉर्मेटिंग करनी है या चेंज करना है. होम टैब पे इसके बाद आप जाएंगे, किसी भी एक इफेक्ट पे, तीनों में से किसी भी एक इफेक्ट को आप क्लिक करिए, आपका टेक्स्ट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. डू यू नो यू कैन रिमूव द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट्स ओवर द टेक्स्ट बाय क्लिकिंग अगेन ऑन द रिस्पेक्टिव बटन्स. तो अगर आपको ये जो आपने तीनों इफेक्ट्स डाले हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, वो हटाने हैं, तो आप इन्हीं सब पे क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपकी वो चीज़ डिलीट हो जाएगी. कीबोर्ड शॉर्टकट्स. Press Ctrl plus Z to undo your last action. Press Ctrl plus Y to perform the action again that you have cancelled by using Ctrl plus Z keys. Press Ctrl plus B to make the text bold. Press Ctrl plus I to make the text italic. Press Ctrl plus U to underline the text. अब आपको आपने जो भी लास्ट एक्शन किया है उसको हटाना है तो Ctrl plus Z दबाइए. लास्ट एक्शन जो आपने कैंसिल आउट करा है कंट्रोल प्लस जी से, वो आपको वापस लेकर आना है तो कंट्रोल प्लस वाई दबाइए. कंट्रोल प्लस बी दबाइए अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है. कंट्रोल प्लस आई दबाइए अगर आपको इटैलिक्स में लेकर जाना है. कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करिए अगर आपको अंडरलाइन करना है. Wrapping text. Wrapping is applied onto the text to display it in multiple lines in a cell. Wrapping text in a cell does not affect other cells. तो wrapping the text होता है जब आपको multiple lines को select करना होता है या display करना होता है एक cell में, और ये wrapping करने से बाकी cells पे affect नहीं पड़ता है. To wrap the text, follow the steps given below. Step 1. Select a cell or a range of cells in which you want to wrap the text. Step 2. Click on the Home tab. Step 3. Click on the Wrap Text option. The text in the selected cells will be wrapped in a single cell. अब आपको अगर टेक्स्ट को रैप करना है तो सबसे पहले आप उस सेल या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर का टेक्स्ट आपको रैप करना है. इसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे. होम टैब पे जाने के बाद आप रैप टेक्स्ट के बटन पे या ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा आपका एक ही सेल में रैप हो जाएगा. चेंजिंग द टेक्स्ट अलाइनमेंट. The term alignment refers to the position of text in a cell. Excel provides the following cell alignments in the alignment group of Home tab. By using these alignments, you can set your text at the proper position in cells. तो alignment का मतलब होता है जो आपकी सेल में टेक्स्ट है उसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट में है, सेंटर में है, राइट में है. तो अलाइनमेंट का मतलब होता है आपके टेक्स्ट की पोजीशनिंग. तो एक्सेल में आपके होम टैब में अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है जो आपको आसानी से टेक्स्ट की अलाइनमेंट करने में हेल्प करता है. देयर आर two types of alignments. सबसे पहला है vertical alignment. The top, middle and bottom are vertical alignments. These align the text in the cell vertically. तो vertical alignment का मतलब होता है जो भी आपका top, middle and bottoms में होता है वो आपकी vertical alignments होती है, ये आपके सारे टेक्स्ट को vertically align कर देती है. दूसरा है आपका horizontal alignment. The left, center and right are horizontal alignments. These align the text in the cell horizontally. तो left में, center में और right side में जो आपकी alignments होती हैं वो आपकी horizontal alignments होती हैं और ये आपको सारे के सारे text को horizontally align करने में help करती है. The use of these alignments are given below. Top align, it aligns the text to the top of the cell. Middle align, it aligns the text so that it is centered between the top or bottom of the cell. Bottom align, it aligns the text to the bottom of the cell. Left align, it aligns the text to the left of the cell. Center align, it aligns the text in center of the cell.
राइट अलाइन, इट अलाइंस द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द सेल। तो कुछ आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, जैसे टॉप अलाइन, ये सारे के सारे टेक्स्ट को ऊपर की तरफ अलाइन कर देता है टॉप साइड में। मिडिल अलाइन में सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो जाता है। बॉटम अलाइन में टेक्स्ट नीचे की तरफ अलाइन हो जाता है। लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड चला जाता है। राइट अलाइनमेंट में राइट की तरफ चला जाता है। और सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर पे आ जाता है। To change the alignment of text, follow the steps given below. Step 1. Select a cell or a range of cells to which the text is to be aligned. Step 2. Click on the Home tab. Step 3. Click on the required alignment option in the alignment group. The text will be aligned accordingly. अब अगर आपको text को align करना है तो सबसे पहले आप cell या range of cells को select कर लेंगे जिसका text आपको align करना है। इसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे। इसके बाद आपका जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे जो अभी हमने पढ़े थे, टॉप अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, बॉटम अलाइन। उसमें से जो भी आपका रिक्वायर्ड अलाइनमेंट है आप उस पर क्लिक कर लेंगे, आपका टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में अलाइन हो जाएगा। Changing the text orientation. The direction of text in a cell is called text orientation. By default, text appears horizontally in a cell, but you can change its direction if required. The options and orientations are as follows. Angle counterclockwise, it angles the text in the cell from bottom left to top right. Angle clockwise, it angles the text in the cell from top left to bottom right. Vertical cell, it centers the text and places one letter on top of the other. Rotate text up, it places the text on the lower right side of the cell and runs it vertically up the cell. Rotate text down, it places the text on the lower left side of the cell and runs it vertically down the cell. तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपका टेक्स्ट किस डायरेक्शन में है। बाय डिफॉल्ट जो आपका टेक्स्ट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टली इस तरीके से अलाइन होता है। आप लिखना उसको शुरू करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता रहता है। लेकिन आप अगर चाहें तो इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। पहला है आपका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें आपका जो टेक्स्ट का एंगल होता है या सेल होता है वो बॉटम से शुरू होके, बॉटम लेफ्ट से शुरू होके टॉप राइट के डायरेक्शन में जाता है। फिर है एंगल क्लॉकवाइज। इसमें जो आपका टेक्स्ट होगा सेल के अंदर वो आपका टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। फिर वर्टिकल टेक्स्ट आता है। इसमें जो आपका टेक्स्ट होता है इसमें एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर अलाइन रहता है। रोटेट टेक्स्ट अप, इसमें जितने भी आपके सेल के अंदर के टेक्स्ट होते हैं जो लोअर राइट साइड ऑफ द सेल होता है उससे ये वर्टिकली रन करता है सेल के अंदर। फिर आता है रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये आपके टेक्स्ट को प्लेस कर देता है लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द सेल में एंड रन्स इट वर्टिकली डाउन द सेल, वर्टिकली नीचे लेकर आता है। To change the text orientation, follow the steps given below. Step 1. Select the cell or a range of cells in which the text orientation is to be changed. Step 2. Click on the Home tab. Step 3. Click on the orientation option in the alignment group. Step 4. Click on the required option. The text will appear accordingly. अब अगर आपको टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो सबसे पहले आप सेल या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी ओरिएंटेशन आपको चेंज करनी है। होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद आपका अलाइनमेंट ग्रुप में ओरिएंटेशन ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपका जो रिक्वायर्ड ऑप्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसमें से जो भी आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन उस पर क्लिक करिए, वो टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। Cell formatting. Apart from text, you can also format cells in Excel. You can apply various types of formatting on it as discussed below. Filling background color in cells. The background color is filled in cells to make them noticeable. To fill color, follow the steps given below. Step 1. Select a cell or a range of cells. Step 2. Click on the Home tab. Step 3. Click on the Fill Color option in the font group. A color palette appears. Step 4. Click on the desired color. The color will be filled inside the selected cells. अब होती है सेल की फॉर्मेटिंग। आपका जो सेल है उसमें भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसको और एनहांस्ड या अलग दिखाने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे। फिर आपके फॉन्ट ग्रुप में फिल कलर से ऑप्शन होगा, उसको आपको क्लिक करना है। आपके सामने कलर पैलेट अपीयर हो जाएगा। इसमें से आपको जो भी कलर चाहिए आप उसको सिलेक्ट करिए, वो आपके सिलेक्टेड सेल में फिल हो जाएगा।
Do you know, click on the no fill option to remove the background color. अब अगर आपने कलर डाला है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली क्लिक करिए नो फिल ऑप्शन पे, वो कलर डिलीट हो जाएगा. Applying border around the cells. To apply a border around the cell or a range of cells, follow the steps given below. Step 1. Select a cell or a range of cells. Step 2. Click on the Home tab. Step 3. Click on the Borders option in the font group. A list of borders appears. Step 4. Select the required border. The border will appear around the selected cells. अब अगर आपको जो आपके cells हैं उसके आसपास आपको border करना है, उसको enhance करने के लिए सबसे पहले आप सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे, फिर आपके फॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर्स ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे. बॉर्डर्स की लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी. जैसा बॉर्डर आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करिए, वो आपके सिलेक्टेड सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा. Do you know? Click on the no border option to remove the border around the cells. अब आपको बॉर्डर अगर पसंद नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है, उन सेल से वो बॉर्डर हट जाएगा. Applying cell styles. In Excel, apart from changing the background color of cells, you can also apply various styles onto them. To apply cell styles, follow the steps given below. Step 1. Select a cell or a range of cells. Step 2. Click on the Home tab. Step 3. Click on the Cell Styles option in the Styles group. A list of cell styles appears. Step 4. Select the required cell style. The style will be applied onto the selected cells. अब अगर आपको सेल का स्टाइल चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर हो गया सेल का, वो आपको चेंज करना है, उसके आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहले तो आप उस सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको चेंज करना है, अप्लाई करना है सेल स्टाइल्स. होम टैब पे जाएंगे, स्टाइल्स ग्रुप में आपके पास सेल स्टाइल्स ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे. आपके सामने एक सेल स्टाइल्स का लिस्ट अपीयर हो जाएगा. जैसा सेल स्टाइल आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करिए, वो आपके सिलेक्टेड सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा. Let's revise. Excel provides a lot of facilities to modify and process data. You can select a complete row or column by clicking on the row header or column header respectively. The cell contents can also be modified using F2 key. The autofill handle is used to quickly fill a range of cells with the same type of data or with the data that follows a pattern, series, without typing it. Formatting is the act of changing the look of a spreadsheet. The wrap text and orientation options are available in the alignment group of Home tab. Excel provides cell styles option in the styles group of Home tab. अब आपका जो एक्सेल है, हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से अगर आपको मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं तो उसके बहुत सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं. आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, रोज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेल्स में बॉर्डर लेकर आ सकते हैं, उन लगे हुए बॉर्डर को हटा सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ऑटोफिल ऑप्शन का एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आप एक सीरीज जो होती है, एक पैटर्न जब फॉलो होता है तो उसको आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही फिल होता रहता है. सेल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पसंद नहीं आ रहे तो हटा सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमें एक्सेल एनेबल करता है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए.